ساتھیوں، عزیز بچوں، بزرگوں اور پردہ نشین خواتین، میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ 10 منٹ کا بیان ہوگا، صرف اور صرف 10 منٹ۔ آپ لوگ خاموشی کے ساتھ اگر بیٹھیں گے تو بولنے میں بھی اچھا لگے گا اور سننے میں بھی اچھا لگے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاہنے والوں، آپ کے درمیان یہ محرم شریف کا پہلا مہینہ گزر رہا ہے۔ محرم شریف وہ ہے، اسی محرم شریف کے مہینے میں کافی پیغمبروں اور نبیوں کے معاملات ہوئے، مگر وقت کم ہونے کی وجہ سے صرف اہم معاملات جو ہے داستان کربلا اور پیغام کربلا۔ آخر آپ تمام ہی لوگوں نے داستان کربلا تو سنی مگر پیغام کربلا نہیں سنی کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں کیوں تشریف لائے۔ یزید نہ اللہ کا انکار کرتا تھا نہ حضور علیہ السلام کا انکار کرتا تھا۔ یزید جو ہے ساری جو آج کمی پائی جا رہی ہے اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والوں میں، وہ تمام چیزوں کا انکار کرتا تھا۔ یزید داڑھی مڑانے کو جائز سمجھتا تھا نا، یزید ناچنا گانا جائز سمجھتا تھا، یزید کھیل کود دیکھنا جائز سمجھتا تھا، جو آج ہماری ساری حضور کی امت جس کو پسند کر رہی ہے۔ مثلاً آج کے دور میں پورے ہندوستان کا میں نے دورہ کیا اور پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ ایک چیز نظر آئی تو وہ ہے ٹک ٹاک۔ اس کے بعد جو چیز نظر آئی وہ گیم ہے، مگر حالانکہ حضور کی امت کو یہ پتہ ہی نہیں کہ زندگی کب ہے اور موت کب ہے۔ ہم نے مسجدوں کو دور کیا، درگاہوں کو دور کیا اور سارا الزام اٹھا کر کے علماء دین اور مشائخ کرام پہ ڈھکل دیا۔ ہم نے قرآن شریف کو اٹھا کے اتنا دور کیا کہ آج پورے ہندوستان میں قرآن شریف کی توہین ہو رہی ہے اور ہمارے کانوں میں جو تک نہیں رنگ رہی۔ کوئی معاذ اللہ قرآن شریف کو پھاڑ رہا ہے، کوئی قرآن شریف کو جلا رہا ہے، کوئی قرآن شریف کی 26 آیتیں مبارکوں نکالنے کی بات کر رہا ہے، مگر یہ قوم اتنی بے غیرتی میں ٹوٹی پڑی ہے کہ اس قوم کو کوئی چیز کی فکر نہیں۔ اگر یہ سفر جو میں نے بیکانیر سے اجمیر شریف کے درمیان کا کیا، نہ میں نے چندے کے لیے کیا، نہ میرے بیوی بچے بیمار ہیں، نہ میری ماں بیمار ہے اس لیے کیا، بس اللہ اور اس کے رسول کی عزت کے لیے کیا۔ صرف ایک ہی مقصد ہے کہ آج سے لے کے 1400 برس تک پچھلے زمانے میں اتنی گستاخیاں سرزمین ہندوستان میں نہیں ہوئی تھی جو پچھلے 7-8 سال سے مسلسل ہو رہی ہے۔ مگر ہر مسلمان، چاہے وہ داڑھی والا ہو، چاہے وہ بے داڑھی والا ہو، چاہے وہ نمازی ہو، چاہے وہ بے نمازی ہو، سارا معاملہ اٹھا کے مشائخ کرام پہ، علماء کرام پہ اور کمیٹیوں پہ ڈھکل دیتا ہے۔ کیا ہم قرآن نہیں پڑھتے؟ کہ قرآن ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ نہیں ہے؟ کیا حضور علیہ السلام کو مرنے کے بعد ہمیں جواب نہیں دینا ہے؟ کیا اس قبر میں نہیں ہمیں دفن ہونا ہے؟ دفن ہونے کے بعد قیامت میں پھر کھڑے نہیں ہونا ہے؟ سارے معاملات ہمارے نزدیک موجود ہیں، اس کے باوجود بھی ہم قرآن شریف کی گستاخی ہو رہی ہم دور ہے، حضور علیہ السلام کی گستاخی ہو رہی ہم دور ہے، امت المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی ہو رہی ہم دور ہے۔ اور ہمیں پتہ بھی چلتا ہے تو بہت سے ایسے نادان بے غیرت لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس سے کچھ نہیں ہونے والا، یہ تو سیاست کی بات ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر سیاست اگر آپ کے ملک کو، آپ کے گھر کو قبضہ کرنا چاہے NRC کے معاملے میں، CA کے معاملے میں، کیپ کے معاملے میں، تو پورے ہندوستان کے مسلمان شیعہ سنی دیوبندی اہل حدیث ایک پلیٹ فارم پر اتر آتے ہیں، مگر حضور علیہ السلام کی شان میں مسلسل 1 سال سے گستاخی ہو رہی ہے، کہیں کوئی چرچا نہیں، کہیں کوئی گھر میں بات نہیں۔
पूरे अजमेर शरीफ के दौरान में मुझे एक ही फोन आया, तमाम लोगों ने एक ही फोन किया, हजरत कारोबार के लिए दुआ करना, हजरत बच्चा बीमार है दुआ करना, हजरत काम धंधा नहीं चल रहा है दुआ करना, हजरत बेरोजगार हूँ दुआ करना, हजरत बीवी बात नहीं सुन रही दुआ करना, हजरत परेशान हूँ दुआ करना, हजरत बीमार हूँ दुआ करना। किसी मर्द मोमिन ने ये दुआ नहीं करने के लिए कहा कि हजरत दुआ करना हुजूर की इज्जत वापस आ जाए, हजरत दुआ करना अल्लाह उसके रसूल की इज्जत के लिए हम पहरेदार बन जाए, हजरत दुआ करना जो काम हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने किया था वही काम हम हिंदुस्तान में राजस्थान की जमीन से करे किसी ने नहीं किया। आप लोग अच्छी तरह से समझ लो, ये अल्लाह उसके रसूल की गुस्ताखी होना एक शादी से, ये यहूदी साजिश है। अगर आज अल्लाह उसके रसूल की इज्जत के लिए खड़े नहीं होंगे तो कल हमारी इज्जत भी सरेआम लूटी जाएगी, हमारी बहन बेटियों की इज्जत भी लूटी जाएगी। मेरा मतलब किसी को भड़काऊ भाषण करना नहीं है, मेरा बयान करना सिर्फ ये है कि आज तुम अपनी इज्जत चाहते हो, अपनी माँ बहन की इज्जत चाहते हो, अपने बुजुर्गान दीन की इज्जत चाहते हो, अपने सिलसिले की इज्जत चाहते हो तो अल्लाह उसके रसूल की इज्जत के लिए खड़े हो जाओ, वरना पता चलेगा जो कौम अपने मजहब को भूल चुकी है, जो कौम अपने इज्जतों को भूल चुकी है, वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती। आखिर पैगाम में करबला तो सबको याद है, दास्तान करबला तो सबको याद है। यजीद जिना कराता था, आज मुसलमान की कौम जिना में मुब्तला है। यजीद शराब पीता था, आज मुसलमान नाम नियाज शराब पी रहे। यजीद दाढ़ी निकालता था, आज नौजवान मुसलमान दाढ़ी निकाल रहे। यजीद बेनमाजी था, आज मस्जिदें वीरान पड़ी हुई हमारी और हम मस्जिदों से दूर है। और या हुसैन का नारा लगाने वालों, या गरीब नवाज का नारा लगाने वालों, या रसूलुल्लाह का नारा लगाने वालों, अपनी गैरत को जिम्मेदारी से संभालो। तुम मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा घर आबाद करेगा। तुम अपने गांव को संभालोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को संभालेगा। आज तुम मजहब इस्लाम से इतनी दूर हो कि पूरे हिंदुस्तान में धड़ल्ले से गुस्ताखी हो रही, कोई कमेटी, कोई तहरीक इसका नाम लेने तैयार नहीं, कोई मस्जिद में इस पे बात करने तैयार नहीं, कोई मुल्क में इसमें बात करने तैयार नहीं। कोरोना की पहली लहर चल रही है, कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, कोरोना की तीसरी लहर चल रही है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर कोरोना की लहर चल रही तो बताओ पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन कैसे हो रहा है? ये एक सिर्फ साजिश थी मस्जिदें बंद करने की, ये एक सिर्फ साजिश थी दरगाहें बंद करने की। अगर वाकई में हिंदुस्तान में बीमारी होती, वाकई में अगर कोई बीमार होता तो सबसे ज्यादा गरीब मारे जाते थे तादाद में। आज गरीब एक टक्का बैठे हुए, मर कोई गरीब नहीं मर रहा है। मर वो रहा है जो गवर्नमेंट पे भरोसा किया है, मर वो रहा है जो बीमारी से परेशान है। हमने कोरोना के लिए मास्क तो पहन लिया मगर अल्लाह उसके रसूल के लिए अपने चेहरे पे दाढ़ी नहीं ली। हमने कोरोना के लिए सोशल डिस्टेंस तो इस्तेमाल कर लिया मगर अल्लाह उसके रसूल के घर को हमने आबाद नहीं करा। मेरा सिर्फ बीकानेर से अजमेर शरीफ जाने का पैदल एक ही मकसद था, सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की इज्जत के खातिर। अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही हो तो अपने अपने चेहरे पे दाढ़ी रखो। आप लोगों को अगर बात समझ में आ रही हो तो हर महीने की चांद की 6 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 6 तारीख गरीब नवाज की तारीख है, 12 तारीख हुजूर अलैहिस्सलाम की तारीख है, 11 तारीख सरकार गौसे पाक की तारीख है। इन तारीखों को अपने घरों में महफिलें करा करो, दरूद शरीफ की, मिलाद की महफिलें करा करो। अल्लाह तबारक व तआला दरूद शरीफ की महफिल करने की बरकत में अल्लाह ताला तुम्हारे घरों से परेशानियों को दूर करेगा, बलाओं को दूर करेगा, रोजी रोजगार का दरवाजा खोल देगा। मगर शर्त यह है कि सबसे पहले नमाजी बन जाओ। शर्त यह है इमाम हुसैन का नारा लगाते हो, सरकार गौसे पाक का नारा लगाते हो, सरकार गरीब नवाज का नारा लगाते हो। ये तमाम अकाबिर कोई भी बेनमाजी नहीं था, हजरत कोई भी बेनमाजी नहीं था। वो पहले नमाज पढ़ते थे फिर दीन और दुनिया का काम करते थे। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, हुजूर अलैहिस्सलाम के चाहने वाले एक जगह पे खड़े हो जाए। हमारे उलमा, हमारे मशाइख, हमारे मुबल्लिगीन, हमारे कारकुन, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान ये एक प्लेटफॉर्म पे आकर फैसला करें कि इतनी गुस्ताखी हो रही, इन गुस्ताखियों का जवाब कैसे दिया जाएगा। कोई हमारी माँ की तरफ निगाह उठा के देखे तो शाम तक हम उसको उठा लेते, कोई अगर हमारी बीवी से उल्टी बात करे तो शाम तक हम उसको उठा लेते, कोई हमारा लाख रुपया लेके चले जाए तो शाम तक हम उसको उठा लेते। मगर जिस नबी का कलमा पढ़ के हम और आप मुसलमान हुए, जिस गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में कलमा लाया, इसी गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जनवरी के महीने में एक साधु ने गुस्ताखी की और पूरा राजस्थान खामोशी के साथ सोया हुआ है। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम का रोज़े मुबारक इस जमीन पे ना होता तो जमीन पे इतनी आग बरसती कि हमारे नामो निशान मिट जाते थे। तो इसके लिए अहम वजह है, सबसे पहली बात एक सब में आओ, सबसे पहली बात नमाजें पढ़ो, अपने वालिदैन की इज्जत करो, बुजुर्गान दीन की सोहबत में बैठो, अपनी बेटियों को पर्दे का हुक्म दो, अपनी बीवियों को पर्दे का हुक्म दो, माँ बाप की खिदमत करो। मेरा एक ही मकसद है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत को एक प्लेटफॉर्म पे लाना है। ना हमारा जंग का मकसद है ना जिहाद का मकसद है, बस अमन और शांति के साथ मजहब इस्लाम का मकसद है। आप लोग साथ देंगे या नहीं देंगे?
जोर से बोलो, नारे तकबीर। अरे यार जोर से बोलो, मैं खाना नहीं खाया क्या तुम भी खाना नहीं खाए? नारे तकबीर। और जोर से बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप अपनी बहनों का, बेटियों का, पर्दों का ख्याल रखो और अपनी मस्जिदों को, जो मस्जिदें यहाँ खुली हुई है, उस मस्जिदों को आबाद करो। यही मेरा आखिरी पैगाम है और हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम की इज्जत के लिए खड़ो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह हज़रत को तरक्की और कामयाबी और कामरानी अता फरमाए अपने हबीब के सदक़े से, करबला वालों के सदक़े से, पाक पंजतन के सदक़े से, आमीन। और हिंदुस्तान के अंदर जितने भी वली अल्लाह आए, चिश्तिया, कादरिया, नक्शबंदिया, रफ़ाइया, जलालिया, बुलाइया, गफ़ारिया, निज़ामिया, जहांगीरिया, मदारिया के सदक़े से अल्लाह इनकी जान और माल की हिफाजत अता फरमाए, आमीन। अल्लाह इन्हीं के सदक़े तुफ़ैल हम सब की जान और माल की हिफाजत अता फरमाए। अल्लाह हमारी कुचेरा शहर की जान और माल की हिफाजत अता फरमाए। अल्लाह हम सब के घरों में खैर बरकत अता फरमाए। अल्लाह हम सबको नेक मुत्तकी परहेज़गार बनाए। अल्लाह हम सबको इमाम हुसैन के बताए हुए रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अपने हबीब के सदके, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदके तुफैल हम सब की जान और माल की हिफाजत अता फरमाए। दम दम बहार का दम हमारे दम मदार माँ तालबाने मुर्शिदे कामिल मदार माँ, ताजा रहे हमेशा ये लश्कर मदार का, जलवा है खाक शारों में उस परवरदिगार का। कादर की बंदगी में कमर बस्ता रहे मुदाम, सत्तार नाम पाक है उस किरदिगार का। शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला शेफ इल्ला जुल्फ़कार। हमारे ग्राम वासी कुचेरा के जितने भी भाई बहन, बड़े बुजुर्ग और दोस्त यार इकट्ठा हुए, हमारा सभी से यही दस्त बस्ता गुजारिश है कि आप सभी लोग, जैसे हजरत ने कहा है कि अगर आप लोगों के अंदर जज्बा है सरकार के खातिर, तो आप लोग थोड़ा सा आगे कदम बढ़ाएं। हम भी तैयार हैं, मैंने हजरत से वादा किया है। अभी कुछ दिनों के बाद में दिल्ली के अंदर सूफ़ी कॉन्फ्रेंस का इन्होंने इंतज़ाम किया है, जिसमें यहाँ से जो लोग जाना चाहेंगे तो चल सकते हैं, मैं ज़रूर जाऊँगा। आगे आप लोगों की मर्ज़ी है। मैं इस सरजमी पे हमारे कुचेरा के बस्ती वालों ने हमको ला करके कायम किया है, तो इसलिए मैं आप लोगों को हिदायत कर सकता हूँ, ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। आगे जैसा आप लोग मुनासिब समझें। अगर आप लोगों का है हक तो दीन के तरफ कदम बढ़ाइएगा, दीन पे चलने की, दीन सिखाने की, दीन हासिल करने की। अल्लाह के रसूल ने खुद हुक्म फरमाया, अगर चीन जाना पड़े तो चीन जाइए। उस वक्त तो और उस दौर में तो चीन बना ही नहीं था। बताए कोई बना था क्या? नहीं बना था ना। जिस वक्त अल्लाह के रसूल ने फरमाया इल्म हासिल करने के लिए चीन जाना पड़े तो चीन जाए। तो आप सभी हजरात से गुजारिश है कि आप सभी लोग हजरत का साथ दें और मैं देने के लिए तैयार हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सलातो व सलाम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इलाही कादर नाम खुदा के वास्ते, बख्श आसी को मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते। या इलाही दूर अब दुनिया को सब आफत से शेर मर्दानी अली मुश्किल कुशा के वास्ते। या अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल नवाज़ रसूल जन्नती जवानों के सरदार इमाम हुसैन इमाम अली मकाम के सदक़े तुफ़ैल इस महफिल को तू तेरे महबूब के सदक़े में कबूल अता फरमा। है अल्लाह ताला इस कुचेरा गाँव राजस्थान के दरमियान में जो गाँव, या अल्लाह ताला इस गाँव के घर की हर बीमारी, हर परेशानी को दूर अता फरमा। या अल्लाह ताला बिलखुसूस इस घर की बच्चियाँ, बेटियाँ, बहनें, माएँ, या अल्लाह ताला इनको
पर्दे का इत्मीनान करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह ताला हमारी बेटियों को 5 वक्त नमाज को वक्त अदा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह ताला बिलखुसूस नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल हमारे नौजवानों को दाढ़ी रखने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह ताला तेरे हबीब के सदके में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल जो बेरोजगार है अल्लाह ताला इस गांव में इसको रोजी रोजगार पे लगा। या अल्लाह ताला बिलखुसूस जो बच्चियां बे औलाद है, जो बच्चे बे औलाद है, उनको नेक व सालिह औलाद अता फरमा। या अल्लाह ताला जिनके औलाद इनको नेक व सालिह औलाद बना। या अल्लाह ताला बिलखुसूस जो लोग माँ बाप की इज्जत और अजमत नहीं करते अल्लाह ताला उनको माँ बाप की इज्जत और अजमत करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह ताला बिलखुसूस इस गांव के जितने भी दुनिया से पर्दा किए हो या अल्लाह ताला सबकी कब्र पे रहमत और नूर की बरसात अता फरमा। या अल्लाह ताला इन गांव वालों के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल बिलखुसूस या अल्लाह ताला गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा को माफ अता फरमा। ऐ अल्लाह ताला तेरे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल बिलखुसूस बाप जी जैसे बुजुर्ग का साया इन गांव वालों के साथ में हमारे भी सरों पे कायम मुदायम रख। या अल्लाह ताला इनकी उम्र अमल में इजाफा अता फरमा। ऐ अल्लाह ताला इनकी तमाम परेशानियों को निजात अता फरमा। ऐ अल्लाह ताला इनकी खानकाहों को आबाद और कामयाब अता फरमा। ऐ अल्लाह ताला बिलखुसूस जो केस चल रहा है अल्लाह ताला उस केस में इनको कामयाबी और कामरानी अता फरमा। या अल्लाह ताला बिलखुसूस इस गांव वालों को भी इनका साथ देने की तौफीक अता फरमा। ऐ मेरे मालिक तेरे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके मेरे मालिक तेरा पसंद तेरा महबूब या अल्लाह ताला तेरे महबूब की पसंद तेरा मोइनुद्दीन है या अल्लाह ताला मोइनुद्दीन की पसंद हजरत उमर अंसारी का लड़का मोहम्मद यूसुफ अंसारी या अल्लाह ताला तेरे हबीब के सदके में हमारी मेहनतों को कामयाब अता फरमा। या अल्लाह ताला बिलखुसूस इस सफर में बख्तियार शेख उमर फारूक शाहरुख और जितने भी नौजवान मेरे साथ में सफर किए अल्लाह ताला मस्तान सबकी मेहनतों को कामयाब अता फरमा। या अल्लाह ताला इन बच्चों के बाजुओं को कुव्वतों को मजबूत अता फरमा। ऐ अल्लाह ताला तेरे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल हम तेरे और तेरे महबूब की इज्जत के खातिर निकले या अल्लाह ताला हमें सही काम करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह ताला इस मकसद से राय के दाने के बराबर भी हटे अल्लाह ताला हमें दुनिया में जलील और रुसवा अता फरमा। ऐ मालिक हमें तेरा और तेरे महबूब का तेरे महबूब के सहाबा का बुजुर्गान दीन का वफादार बना। ऐ मेरे मालिक जो भी गुस्ताखी और या अल्लाह ताला उस गुस्ताखी से हमें लड़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह ताला तेरे हबीब के सदके में बिलखुसूस हुजूर की सारी उम्मत को बिलखुसूस तेरे महबूब के सदके में औलिया कराम सूफिया कराम बुजुर्गान दीन और हमारे उलमाए कराम मुसल्ली सबको एक सब में आने की तौफीक अता फरमा। ऐ मेरे मालिक जरी जरी से नाराजगी या अल्लाह ताला उस नाराजगी को दूर अता फरमा। ऐ अल्लाह ताला हम तेरे बंदे तू ही हमारा खालिक है, तू ही हमारा मालिक है। ऐ मेरे मालिक बिलखुसूस हम तेरे हबीब की उम्मत या अल्लाह ताला हुजूर के सदके में इस उम्मती को एक सब में अता फरमा। ऐ मेरे मालिक अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा गरीब नवाज के सदके में मेरे मालिक इस गांव वालों पे खुसूसी करम अता फरमा। मेरे मालिक खुसूसी रहम अता फरमा। ऐ अल्लाह ताला तेरे हबीब के सदके में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल जो कानून हिंदुस्तान के सरजमीन में अल्लाह उसके रसूल की इज्जत के लिए बनाना है अल्लाह ताला मौत से पहले पहले वो हमें कानून बनाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह ताला तेरे हबीब के सदके में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल सिर्फ हम तेरे और तेरे महबूब के दीन के खातिर निकले हुए अल्लाह ताला हमारी मेहनतों को तेरी बारगाह में कबूल अता फरमा। या अल्लाह ताला जब तक के जिस्म में जान रहे तुझ पे और तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, कुछ रहे या ना रहे नज़ा के वक़्त सलामत हमारा ईमान रहे। बहक ला इलाहा इल्लल्लाह।